This is certainly a shot in the arm, but the fact of the matter is that as far as electoral politics goes, if the Gandhi sign is looking at the traditional Congress and Gandhi bastion of Amethi, it isn't going to be easy this time around. So these are questions that remain from where Rahul Gandhi is going to be contesting the next elections. Is he going to be giving a direct challenge to Smriti Irani? What really is going to be the future course of action? Okay, we'll try and connect with Mosmi in a moment from now, but these are pictures, in fact, right at the AICC headquarters on the right side of your screen. The left side of your screen is this image. In fact, these are visuals of a path that actually leads up to Das Janpath, where former Congress President Sonia Gandhi stays. It's directly connected to Chaubis Akbar Road, and that is the road that connects Das Janpath with Chaubis Akbar Road. That's usually the road or the path, I would say, which the Gandhis take each time they have to come to the AICC headquarters. So our camera is there for a reason, because that's where Rahul Gandhi is going to be coming from. In a few moments from now, he is going to be at the AICC headquarters. Remember, workers of the Congress party have gathered there, and they're in fact shouting slogans in favor of Gandhi, hoping to get a glimpse of him in a few moments from now. A series of reactions coming in. Let's go straight to them. We welcome the Supreme Court decision. The truth and justice has prevailed in Supreme Court. अंत में जीत सच्चाई की ही होती है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत. We are also feeling relieved that his conviction has been stayed, and we hope that honorable court would also exempt him, because in a way, because we want him to be back in the electoral politics, so that later he can really join us in the Lok Sabha election in 2024 as our leader. So and we have a lot of faith and trust in our judiciary. I think it is an appropriate order. If you see the judgment today, if you see the order today, it is very important that we have people who speak the truth coming back to the Lok Sabha. Politics of hate, politics of vengeance will not win in this country, and we support this order. Now, India Today also spoke to Pranesh Modi. The BJP leader had filed a complaint against Rahul Gandhi over his remark on Modi. Here's what he had to say on the Supreme Court verdict that has put Rahul Gandhi's conviction on hold. सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है. इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्मानीय फैसले का स्वागत करते हैं, और आने वाले दिन में जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है, वह हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी. तो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का जो धारा 8 का जो सबसेक्शन 3 है, उसमें 2 साल का प्रोविजन है. यदि 2 साल से 1 दिन की भी सजा कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 8(3) सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है. और जब नहीं अप्लाई होता है, ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया. आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है? क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल, फाइन या बोथ है. और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है. तो यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती. दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है. जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है. इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जाता है. देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सुमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है. तो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने फुल सेंटेंस किया है, उसमें बोध भी है, फाइन प्लस सेंटेंस. तो उन्होंने वो क्यों किया है? और उन्हें सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद हमारे अभिषेक मनु सिंघवी का आर्गुमेंट और महेश जेठमलानी ने कहा था कि
राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी फैमिली को। और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है, बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा, चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आस्था 140 करोड़ लोगों की आस्था है, वो इसीलिए है कि जब जब कसौटी पे कोई बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर खरा उतरता है। राहुल गांधी जी के मामले में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों का, गुजरात हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। सच का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। तो जुडिशरी पे हमारे पूरा यकीन है। आज रोक लगी है, नीचे केस में चल रहा है, उसमें भी राहुल गांधी की जीत होगी और सच्चाई सदा जीतती है। और ये एक बात साबित करता है, कितनी भी कोशिशें कोई करे, राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने के लिए उनकी आवाज़ नहीं दबेगी।